تو آیت نمبر 97 سے اسٹارٹ کرنا تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 97, 98, 99, 100, 101, 102. 102 ذرا بڑی آیت ہے تو اس کو ہلکا سا ٹچ کر کے چھوٹی ہے. تو اسٹارٹ کریں گے صرف 97 سے. کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اردو میں؟ پھر اس کے بعد میں راؤنڈ 2 پر. منصور یا زبیر پڑھ لو نا اردو میں. 97. میرے پاس اردو نہیں ہے، انگلش ہے. ہاں انگلش میں پڑھ لو، مطلب میں تو منصور ایک منٹ میں پڑھ رہا ایک منٹ. اوکے. آیت نمبر کون سی عادل بھائی؟ 97. 97. اب ایک منٹ پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، آپ کے دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. 100. یہ لوگ جب کبھی کوئی احاد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. عادل بھائی 100 ہو گئے؟ 102. 4 ہو گئے. 101 بھی پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. 101 پہ ختم کر دیں گے اور کل سے 102. ٹھیک ہے. 102 ایک بار پڑھ دیجیے، مگر اپن آج نہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مگر ایک بار لمبی آیت ہے، ایک بار پڑھ لیجیے 102. ٹھیک ہے عادل بھائی. اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچایا اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بہترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت
کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو ابھی 102 تو نہیں پڑھیں گے، 101 تک جائیں گے، مگر یہ معلوم ہونا کہ 102 جو ہے جادو کے بارے میں ہے، اور جادو کیسے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے جادو سکھانے کے لیے، اور جادو اس دنیا میں کیسے آیا، وہ 102 کے بارے میں ہے، مگر 102 اتنا ہی ابھی بول کے چھوڑ دیں گے۔ ابھی چلیے واپس آیت نمبر 97 سے شروع کریں گے۔ تو اب 97 میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے، اور وہ لوگ جو ہے قرآن کو ٹھکرانے کے لیے ایک نیا بہانہ ڈھونڈے۔ قرآن کون اتار رہے؟ جبرائیل علیہ السلام اتار رہے۔ ارے ہم کو جبرائیل علیہ السلام نہیں پسند، یہ فرشتہ نہیں پسند، کوئی دوسرا فرشتہ اگر اتارتے تو ہم قرآن مان لیتے، ہم کو جبرائیل علیہ السلام سے پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے تم جبرائیل سے پرابلم دشمنی رکھو یا میکائیل سے رکھو، تو میرے سے دشمنی رکھے، کیونکہ کون آ کے دیا لیٹر وہ امپورٹنٹ ضروری نہیں بات ہے، ہے۔ کیا لیٹر لا کے دیا امپورٹنٹ ہے، لیٹر جو لکھا انہیں امپورٹنٹ ہے، لیٹر امپورٹنٹ ہے، کون لا کے دے رہا کیا امپورٹنٹ ہے، یہ سب ناٹکاں ہیں تمہارے، بول کے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ سے اپن دوبارہ پھر میں بریک کر کے آیت پڑھتا ہوں، ٹرانسلیشن میں ہے ابھی اپن، تو دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں آیت نمبر 97۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے بول رہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کے دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر قرآن نازل کی، قرآن اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے دشمنی نہ رکھے۔ مطلب آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ بول رہے تم کیوں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھ رہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے، اور اس لیے دشمنی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، اور ایکچولی قرآن ہے بھی کیا، پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی، مطلب پہلے کی کتاب کون سی تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی کنفرمیشن کر رہی وہ، اور اس میں ہے کیا، اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والی کتاب ہے، وہی بشرا، ہدم و بشرا، یہاں پہ دو لفظ یوز کرے، ہدم اور بشرا۔ ہدن بولے تو ہدایت سے نکلا، خدا، اور کتاب کیا دے رہی تمہارے کو؟ ہدایت دے رہی اور تمہارے کو خوشخبری دے رہی، تو تم کو میسج حاصل کرو، بشرا، خوشخبری۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو دین پہ چل رہے آلریڈی اور ان کو تکلیف آئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہے کہ بے چین مت ہو، پریشان مت ہو، بول۔ تو بول رہے کتاب میں ہدایت ہے تمہارے اچھے کے لیے، تم کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، اور جو صحیح راستے پہ آلریڈی ہے ان کے لیے خوشخبری، بشرا ہے۔ تو اس میں تمہارے کو پرابلم کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ان کا اور ایک اسٹریٹجی، ان کی اور ایک بہانے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے یہودیاں یہ ایک نیا اٹیمپٹ کرے تھے اسلام پہ اٹیک کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے۔ اور ایکچولی خالی جبرائیل علیہ السلام تک بات نہیں ہے، اصل ان کے دلوں میں گڑبڑ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلیت کچھ بات ہے، اصل تمہاری گڑبڑ کیا ہے بتاتا ہوں میں، بول۔ تو آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ بولے جو شخص اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ جو ہے رسولوں کو، فرشتوں کو سے دشمنی رکھو تو تم جو ہے اللہ کے دشمن، اور یہ وہی لوگ ہیں اور یہ کافروں کی نشانی ہے۔ تو دشمنی تم جبرائیل سے رکھ، اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے، جبرائیل سے دشمنی رکھے تو مطلب تم اللہ کے دشمن رکھ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے تو تم میرے سے نفرت کرنے کی جیسی ہو گیا۔ نہیں ہم کو جبرائیل سے پرابلم ہے، اللہ سے پرابلم نہیں ہے، بول تو یہ اسٹریٹجی، یہ بہانہ نہیں چلتا۔ اور یہاں پہ فرشتوں کا ذکر کرے اور پھر جبرائیل اور میکائیل کا ذکر کرے، حالانکہ جبرائیل اور میکائیل آلریڈی فرشتہ ہے۔ فرشتے جب بولا گیا کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن، جو بھی فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا، تو فرشتے مطلب سب آ گئے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ایکسکلوسیولی دونوں کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ جیسا بنی اسرائیل کے اوپر بولتے نا موسیٰ اور عیسیٰ، کیونکہ حالانکہ ان کو کئی پیغمبر گزرے مگر موسیٰ اور عیسیٰ سب سے بڑے ہیں۔ موسیٰ سب سے لاسٹ ہے اور سب سے ٹاپ کے بھی ہے، دو اس کے لیے ہائی لائٹ کرتے ان کا پوزیشن۔ حالانکہ جب ہم نے تمہارے طرف پیغمبر بھیجے، ایک آیت میں پہلے آیا تھا اپنے کو، ایک 10-15 آیت پہلے، اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے طرف کئی پیغمبر بھیجے اور ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ بھی بھیجے، موسیٰ ابن مریم۔
दोनों पैगंबर ऑलरेडी। उसी तरीके से यहाँ पे फरिश्ते तो अल्लाह ताला बोले जो भी ये फरिश्तों के दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है, मगर यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करे और दोनों को साथ रखे। और ये यहूदियों को मीकाइल से प्रॉब्लम नहीं है, जिब्राइल से प्रॉब्लम था। दोनों बोले जिब्राइल मीकाइल दोनों को साथ में लिए उनको वर्ड्स में। तो आयत नंबर 98, आयत नंबर 99, और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलील भेजे, आयात भेजे जो क्लियर निशानियां थे, दलील थी, क्लियर, रोशन मतलब क्लियर था, ऐसे निशानियां भेजे जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं कर सकता। तो हमने तो तुम्हारे तरफ साफ, क्लियर, कंफ्यूजन के बगैर, क्लैरिटी के साथ हमने आयतें भेजी जिसका तो कोई रिजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर रिजेक्ट करा मतलब उसका पहले से मतलब पास बन गया उन्हें। वो है यहाँ पास जी 99 आयत नंबर 100। लोग जब कभी कोई हद करते तो उनकी एक ना एक जमात उसको तोड़ देती। ये और एक उनकी आदत है कि जब कभी भी एक हिस्से में बिलीव करते थे, एक हिस्से में बिलीव नहीं करते थे, वो एक फितरत थी उनकी। और एक क्या थी इनकी, एक ग्रुप जो है उसको बिलीव कर रहा था, दूसरा ग्रुप उसको तोड़ देता था। जो अल्लाह ताला हुकुमात दिए, पैगंबरों की मदद करो बोले, इनको फैलाओ बोले, वो सब को जो है जो काम बोल रहे हैं ना, अहद जो लिए थे अल्लाह ताला, उनको एक जमात उसको तोड़ देती थी। मतलब कुछ लोग इस थे जो उस पर अमल करते थे, बाकी के लोग जिनको जिम्मेदारी दिए दीन को चलाने की और दीन पे अमल करने की, उन्होंने उस अहद को तोड़ दिए। तो अल्लाह ताला इधर एक ऑप्शन की तरह दीन को प्रेजेंट करे, एक जिम्मेदारी, एक अहद की तरह कि तुम जब मुसलमान बने तो तुम्हारे को कसम दी जा रही कि तुमको ये चीजें करना है। ऐसा नहीं है कि दिल बोला तो मैं करूंगा, दिल बोला तो नहीं करूंगा। यहाँ पे अल्लाह ताला अहद ले रहे। इससे पहले एक आयत में आई थी ना कि पिक एंड चूज नहीं करना बोल के। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, मैं बोल रहा हूँ जैसा बोलते नहीं, हम मुसलमान बन गए, दिल बोला तो नमाज पढ़ते, दिल बोला तो नहीं पढ़ते, राइट? करो बोल नहीं बोल रहे, अहद लिए कि तुमको करना ही है। अहद बोले तो खत्म ले, अल्लाह ताला तुमसे खत्म कि तुम्हारे को दीन के हर अहकाम पे चलना है। मगर लोग जो है उसको अहद की तरह नहीं लेके दिल बोला तो करेंगे भाई, मूड अच्छा रहा तो करेंगे, मूड अच्छा नहीं रहा तो नहीं करते। कभी अच्छा दिल बोला तो करते, तो नहीं करते। अपनी मर्जी से कभी करे नहीं है ऑप्शन। अहद का मतलब तुमको करना ही करना है। और जिनके दिल में जो क्या है, हाँ, बल अक्सर हम ला युमिनून, और अक्सर ये लोग जो है इस ईमान से खाली है, उनके अंदर वो ईमान नहीं था कि वो अहद को पूरा कर सके। आयत नंबर 101। और जब उनके पास अल्लाह ताला का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया और उन्हें अहले किताब की एक फिरके ने अल्लाह ताला की किताब को उस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला पीठ पीछे किताब डाल देना। तो अब अल्लाह ताला बोल रहे और एक हरकत क्या करते थे लोग, अपनी किताब को पीठ पीछे डाल देना। ये एक अरबिक का मुहावरा है। किताब पीठ पीछे डाल देना मतलब उसकी तरफ पलट के नहीं, मूव कर देना, और उसके हुकुमात कुछ करना, उसको अमल नहीं करना। तो ये बोल रहे अल्लाह ताला बोल रहे ऐसा करते थे जैसा कि ये किताब उनकी है ही नहीं जैसा। तो हुआ किताब छोड़ दिए, किताब पीछे फेंक दिए, तो हाथ में क्या है, हाथ में फिर क्या किताब आते, आयत नंबर 102 में। तो जब फिर आसमान से जादू जादू की तरफ पड़ गए, मतलब जो किताब पढ़ना है वो नहीं पढ़ के बेकार के उसमें नहीं तुम मिसअंडरस्टैंड कर, तुम कुरान को छोड़ दिए, तो कुरान को बीच पीछे, तो अल्लाह ताला नाराज हो गए, तो अल्लाह ताला हिदायत करके हटा दिए। ये किताब आया और ये किताब तुम्हारी नसीब बन गई। ये किताब के पीछे पड़े हुए हैं, जादू कर रहे, एक दूसरे के कारोबार तबाह करे, एक दूसरे की जिंदगियां तबाह करे, जलन हसद से गुनाह कर रहे, और अल्लाह ताला इसको कुफ्र बोले। जादू करवाना जो है कुफ्र है। तो अल्लाह ताला ये आयत नंबर 101 से 102 को फौरन कैसा लिंक कर रहे, तुम कुरान को, अपनी किताब को पीछे फेंक दिए, ईमान से हट गए, कुरान से दूर हो गए, तो फिर शैतान मौके का फायदा उठा के तुम्हारे हाथ में क्या चिपका दिया, ये काम में लगा दिया।
रहा है, इसलिए 102 का आयत में 101 से पढ़ के छोड़ देता हूँ। 102 का डिटेल में जादू के बारे में कल डिस्कस करेंगे कि जादू कैसा शुरू हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने के टाइम पे शुरू हुई, 2 फरिश्ते अल्लाह ताला आसमान से भेजे, फलां फलां, बाद में बात करेंगे। तो अब Okay. ये ट्रांसलेशन हो गया, अब इंशाल्लाह हम लोग जो है तब तो अब ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का मसला क्या है यहूदियों का, चलो वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक सेकंड। हाँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था इनको जिब्रील अलैहिस्सलाम से, इनको एक्चुअली दीन को बिलीव नहीं करना था और जो है इस्लाम पॉपुलर होने लग गया यहूदियों में। अब इनको इस्लाम के अंदर कुछ गलती निकालना है, कुरान के अंदर गलती निकालना है, ताकि इनके जो फॉलोवर्स यहूदी बन के थे, जो इनके पीछे रहते थे, वो इनको छोड़ दे के मुसलमान बन जा रहे। तो अब रोकने का एक आखिरी कोशिश, ये यहूदी हिस्ट्रियों में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में एक चीज बता दो, जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे फरिश्तों के सरदार है इन जनरल, और 5 फरिश्ते बहुत स्पेशल है, जिब्राइल, मीकाइल, इसराइल, इसराफील, ये कुछ 5 बड़े फरिश्ते हैं, जिसमें से टॉप फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्योंकि सबसे बड़े फरिश्ते हैं, उनको सबसे बड़ा काम दिया गया। सबसे बड़ा काम क्या है? किताबों को लाना आसमान से, अल्लाह की वही लाना, अल्लाह के हुक्म लाना। मतलब आप किसी को अगर आप 1 किलो मांस भेज रहे और मांस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वॉचमैन को बोलते ले जाकर दे दे कि आजा भाई मेरी तरफ से 1 किलो मांस, राइट। मगर किसी को गोल्ड रिंग भेज रहे, वॉचमैन को नहीं देते, किसको देते? खास भरोसे वाले आदमी को भेजते। क्यों? क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बोले आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही है। हाँ शोएब भाई काय बोल रहे? ड्यूटी पे थे ना, उन ड्यूटी नहीं कर रहे। शोएब अंकल वॉशरूम को गए। शोएब अंकल या डैडी? डैडी डैडी है। हाँ, डैडी। अच्छा, हम समझे शोएब अंकल ही समझे। सब लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा। बहुत डिस्टर्बेंस था। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की वैल्यू को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा वो उसमें गहराई में उतरेंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ खास दुश्मनी कई थी यहूदियों को, और अल्लाह ताला उस दुश्मनी को कैसे जवाब दिए, वो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का। तो जब हम लोग किसी पड़ोसी को कुछ भेज रहे और कुछ कोई बीमार हो गए, तो भाई कुछ 1 किलो आम भेज दिए या 1 एप्पल भेज दिए, तो वॉचमैन के जरिए भेज देते, भाई पहुंचा दो, उनके पास जरूरत है बोल के। मगर जब कुछ गोल्ड नेकलेस या कुछ महंगी चीज भेज रहे, तो हम लोग क्या करते? खुद जाके देते, या नहीं तो कोई खास आदमी, भरोसे वाले आदमी, कोई बड़े आदमी को भेजते, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं गुम ना जाए बोल के। तो इससे पता क्या चला कि कीमती चीज के लिए कीमती लोग आते। तो उसी तरीके से दूसरे कामों के लिए तो कोई भी फरिश्तों को अल्लाह ताला भेजते थे, मगर क्योंकि ये कुरान और ये तौरात, ये जो इंजील, ये जो आसमानी किताबें हैं, जो अल्लाह के हुकूमात है, अल्लाह के नजर में इसकी बहुत अहमियत है ये किताबों की। इसके लिए अल्लाह ताला ऐसे वैसे फरिश्ते के साथ में फरिश्तों के सरदार जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ ये काम दिए थे। इससे पता ये चला कि अल्लाह के नजर में ये किताबों की अहमियत क्यों अल्लाह के नजर में अहमियत ज्यादा है इन किताबों की। हम उसको लापरवाही से देखते, हम उनको केयर नहीं करते, हम कई किताबों के साथ वो किताब को रख देते, हम लोग समझ में नहीं सके। मगर हम नहीं जानते, अल्लाह जानता, अल्लाह जानता उसकी अहमियत। इसके लिए अल्लाह ताला के नजर में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू। क्यों वैल्यू है अल्लाह ताला के नजर में? क्यों इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू? कोई जवाब देंगे? अल्लाह ताला क्यों ये किताब को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कुरान की? कोई जरा जवाब दे सकते कोशिश? क्योंकि वही किताब गाइड कर रही ना आने वाले इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों को, या इस्लाम का एसेंस वही है ना कुरान। ज्यादातर इबादत करना लोग अल्लाह की, समझना। जी, वो पार्शली कुछ सही है। ये किताब है जो अल्लाह की मारिफत दिलाती।
हाँ, मारिफत का मतलब क्या है? और पहचान, एक्सपैंड की अल्लाह की पहचान ले तो क्या पहचान, हो जाता? पहचान, मारिफत यानी कि पहचान, पहचान कराना, पहचान जो है ना और करीब अगर करना, पहचान लिए, पहचानना, जैसा कि उनकी हर जिस तरह से अपन अपने वालिद को पहचानते या दोस्त को पहचानते हैं, उस तरह से अल्लाह को पहचानना, उसकी मारिफत आइडेंटिफिकेशन, हासिल होना, अल्लाह करीब होना। करीब है। तो उसकी ये कुरान पढ़ने से जो है ना उसकी अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती। ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता। नहीं, बेशक बेशक सही है, कई रीजन है, कई फायदे हैं कुरान के, मगर ऑन अ होल हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कुरान को अंडरस्टैंड करे तो हम अल्लाह को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा अभी भाई मारिफत बोले, अल्लाह को जिस तरीके से पहचानना है, अल्लाह को जिस तरीके से अपने जिंदगी का सेंटर बनाना है, और जिंदगी और मौत अल्लाह के खातिर होनी चाहिए, और अल्लाह को जिस तरीके से इज्जत देना चाहिए, अल्लाह के हुकूमात को जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए, अल्लाह जो हलाल बोले हलाल चीज को अपनाना, जो हराम बोल रहे हराम चीज को अपनाना, ये सब हासिल करके अल्लाह की रजा हासिल करे तो जन्नत में जाएंगे और जहन्नुम की आग से बचेंगे। तो अल्लाह ताला इस किताब को इसलिए अहमियत दे रहे ताकि हम जैसे इंसान इसको इस्तेमाल करके जो है सही रास्ते जन्नत में जाएंगे और अल्लाह के पास वापस कामयाबी से पहुंचेंगे। तो ये अल्लाह ताला चाह रहे, इसके लिए किताब को अहमियत दे रहे। और अल्लाह ताला को मालूम है ये किताब के बगैर हम हम अपने खुदी से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने तजुर्बे से हम नहीं समझ सकते अल्लाह को कैसा राजी करना और जन्नत को कैसे जाना, जिंदगी का राज क्या है, जिंदगी के प्रॉब्लम्स क्यों आते, ये सब चीजों को समझना हमारे अक्ल की बस की बात नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला आसमान से अपने तरफ से जो है किताब नाजिल करा ताकि ये किताब के जरिए हम कामयाबी का रास्ता समझ के उसके पास पहुंच सके। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कामयाबी का रास्ता जो है अल्लाह को राजी करने का तरीका दीन का रास्ता बनाए, ना कि दुनिया के भी किताबें नाजिल हुई, जैसा कि कोई फिजिक्स की किताब लिखे, कोई साइंस के, कोई इंजीनियरिंग, कोई बिजनेस कैसा चलाना, एमबीए की किताबें लिखे, कोई जो है मेटलर्जी, साइंस कैसा बनाना, दवाएं कैसे बनाना, ये सब भी तो किताबें आई। और ये भी एक तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से चाहे, क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हमने सिखाया तुम्हें, हमने तुम्हें शिप पे जाना सही सही सिखाया, सही पानी को कैसे कंट्रोल करना, हमने तुम्हें सिखाया दवाएं कैसे बनते हैं, हमने तुम्हें सिखाया लोहे से जो है आर्मर कैसा बनाना और तलवार के अटैक को बचना, हमने तुम्हें पहली बार नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था शिप बनाओ बोल के। तो एक तरीके से जो भी नॉलेज और हासिल कर रहे हम दुनियावी बिजनेस हो या मनी हो या साइंस हो, वे भी अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर जिब्राइल के क्या है हमारे इंटेलिजेंस से हमारे को पार आ गया। जैसा न्यूटन बैठा हुआ एप्पल के झाड़ के नीचे, एप्पल नीचे गिरा तो उसका दिमाग क्लिक हुआ कि भाई ग्रेविटी है, जमीन में ग्रेविटी, इसलिए वो गिर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, और ग्रेविटी की वजह से उन्हें कई नई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया, राइट। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ये भी आ रहे, मगर वो नॉलेज जो है अपने आप अपने को आ रहा, मगर कोई फरिश्ता ला के नहीं दे रहा, जैसे जिब्राइल ला के नहीं। तो मतलब वो क्या नजर है, जैसे कि हम पड़ोसी को जो है 1 किलो आम भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, इसलिए किसी के हाथ से भेज दे रहे। तो उसी तरीके से ये जो साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन का जो नॉलेज है अल्लाह ताला कभी न्यूटन के दिल में डाल दिया, आइंस्टाइन के दिमाग में डाल दिया, फला फला में डाल दिया, अल्लाह के नजर में नहीं होने की वजह से वो किसके जरिए भी आ जा रहा, काफिरों के जरिए से भी आ जा रहा। काफिर आए सबसे ज्यादा इन्वेंट और डिस्कवरी करे साइंस के ज्यादातर चीजों को, नहीं माशाल्लाह हमारे मुसलमान भी बहुत करे और कई सिविलाइजेशन में हमारा हाथ आगे रहा, और ओवरऑल मान भी लिए कि नॉन मुस्लिम ज्यादा करे, तो उसको अल्लाह ताला उतनी अहमियत नहीं दिए। मगर जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो रूहानी किताबें आई उसको जिब्राइल के जरिए भेजे, क्योंकि अल्लाह ताला उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। तो इससे हमको क्या पता चला, 1 मिनट,
और आवाज दी। तो हाँ। तो इससे पता ये चला कि फरिश्तों के जरिए ये रूहानी किताबों को भेजने का मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे नजर में ये दीन का इल्म Important. इज इम्पोर्टेंट दैन दुनियावी इल्म, क्योंकि दुनियावी इल्म कुछ हद तक आपकी जरूरत, पेट, इज्जत दिलाता, तुम्हारे को खाना वगैरह दिलाता, ये नॉलेज आपको बड़े बड़े बिजनेस चलाने सिखाता, मगर अल्लाह के नजर में उसकी अहमियत नहीं है। वो तो दुनियावी जरूरियात है जिस कुछ हद तक जरूरी है, पेट में दर्द है तो दवा होना और पेट्रोल कैसा निकालना सीखना है, उसकी अहमियत तो है। ये नॉलेज, ये इंजीनियरिंग की डिग्री, ये मेडिसिन की डिग्री, ये लॉ की डिग्री, ये बिजनेस MBA की डिग्री, अल्लाह के नजर में उसकी अहमियत है तो वो है, मगर अल्लाह के नजर में ज्यादा अहमियत आसमानी किताबों और कुरान की इसलिए है क्योंकि ये आपको अल्लाह के नजदीक लेके जाती है और आपको जन्नत तक लेके जाती है। वही दुनियावी इल्म जो है आपको दुनिया के हद तक आपको इज्जत, ऐशो आराम और भूख और प्यास दूर करने में मदद करती है। इसलिए वो नॉलेज किसी और तरीके से भी आ जाता, मगर कुरान जैसे आसमानी किताबा सिर्फ फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला भेजे। इसके पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है, अल्लाह ताला के लिए क्या पसंद है और अल्लाह ताला क्यों उस चीज को पसंद करे, क्यों कुरानी किताब आसमानी किताबों को ज्यादा वैल्यू दी करे। क्योंकि ये बंदे अल्लाह बोले तेरे को एक्चुअली काम आने वाली चीज ये है, ये कीमती है, ये है, वो आम है। आम की भी जरूरत है, सेब की भी जरूरत है, भूख लगे तो सेब खाते या सोना खाते, चांदी खाते, सेब ही खाते, भूख लगे जब सेब ही है। और अल्लाह ताला बोल रहे ये सेब है मगर ये डायमंड है, ये गोल्ड है, तो इसको गोल्ड की तरह ट्रीट करो। अल्लाह ताला उसको प्रूव करना चाह रहे, उसको वैल्यू उस तरीके से दे रहे। तो हमारे जिंदगी में भी इसकी वैल्यू आसमानी किताब, आसमान से आने वाली किताब, अल्लाह के हिदायतों को भी हम उस तरीके से देखना चाहिए जिस तरीके से उसकी इज्जत होनी चाहिए, जैसा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा प्रॉपर्टी के पेपर, गोल्ड जो है तरीके से अलमारी के अंदर तैयार लॉक कर देते, मगर फिजिक्स की बुक, इंजीनियरिंग की बुक हाल में पड़ी हुई रहती। क्यों? क्योंकि भाई तो कर लेता, भाई क्या है फिजिक्स की किताब कौन सी जगह, इंजीनियरिंग की पढ़ी हुई रहता। रात में भी अरे वो बेगम बोलते अरे इंजीनियरिंग की बुक उधर रख देके सो गए तुम बाहर सोफे के पास, मुझे भी चोरी कर लिया था। अरे छोड़ा यार इंजीनियरिंग की किताब, कोई भी नहीं पलट के देखता फिजिक्स की किताब, कोई सोना डायमंड उठा के रखते। तो अल्लाह ताला भी वही बोल रहा है, कुरान की किताब को, कुरान के हुकुमात को, कुरान के जज्बे को जो है कीमती मानो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को बदल सकते, तुम बेहतर इंसान बना सकते, तुम्हारे वजह से माशरे को चेंज कर सकते। इसलिए जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, वो भी टॉप ऑफ द एंजल्स, लीडर ऑफ द एंजल्स के जरिए भेजी, तो इसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम वैल्यू दी जा रही है। राइट, अब रहेंगे वापस आयत पे आएंगे कि क्यों यहूदियों को प्रॉब्लम था, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक काम भी करते थे, सजा भी भेजते थे अल्लाह ताला उनके, पूरा गांव तहस अजाब भी उनके थ्रू आता था। हाँ, इन आके पूरा गांव उड़ा देते, पूरा आबादी खत्म, अल्लाह ताला हुक्म आया खत्म। पहले के जमाने में अल्लाह ताला का ऐसा गुस्सा हुआ करता था कि एक बार पैगंबर को झुटलाए या हुक्म पे रले गए तो अल्लाह ताला पूरा खत्म ही कर देते, पूरी नस्ल खत्म कर देते एक साथ, इतना अल्लाह ताला का गुस्सा था। मगर अल्लाह ताला बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला बोले ठीक है मैं उम्मत मुस्तफा को एक बड़े झटके से खत्म नहीं करूंगा। हाँ, छोटे अर्थक्वेक आएंगे, छोटे कोरोना से थोड़े बहुत मरेंगे, मगर एक साथ खत्म नहीं करूंगा, बल्कि जिस वजह से आज वैसे बड़े अजाब जहाँ पे पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जा रहा, वैसा नहीं आया एक्चुअली देखा गया था, कुछ छोटे छोटे आ रहे देखा गया तो ये अजाब भी। तो अब यहूदियों को जब मालूम हुआ कि वो लोग गलत हरकत करे और वो पूरा शहर तबाह करे, तो कौन सा फरिश्ता आया अजाब लेके? से दुश्मन, हाँ हमारा वो गांव खत्म कर दिया, हमारा कबीला खत्म कर दिया, ये इसकी ऐसी की तैसी जिब्राइल सलाम लुच्चे लफंगे हम दुश्मनी। मगर एक्चुअली क्या फायदा? हाँ हेलो, तो मगर आ रही आवाज? हाँ, तो की बात है कि आपको अल्लाह ताला जो है अजाब दे के भेजा और अजाब जो इम्प्लीमेंट कर रहा उससे आपको दुश्मनी रहनी चाहिए, या जो ऑर्डर भेजा उसके साथ दुश्मनी रहनी चाहिए? ऑब्वियसली अल्लाह से दुश्मनी देखा गया तो तुमको अल्लाह से प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला भेजिए, तुम अल्लाह ताला को चहीते बेटे हैं हम अल्लाह के, वो है तो अल्लाह से बात करो। रादर तुम दुश्मनी जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से निकालने का क्या मतलब है? तो ये उनके क्यों? क्योंकि अक्सर ये नहीं देख रहे कि तुम अगर उल्टे हरकत नहीं करते हैं तो तुम्हारे को अजाब ही नहीं भेजते थे।
तुम अपनी गलतियों को देखो, ना कि जो तुम्हारे को आजाद देने हैं उसके साथ तुम पर्सनल दुश्मनी निकाल ले रहे। ये कितनी बेवकूफी है। अपना ब्लेम अपने पे नहीं लेके दूसरों पे डालने की क्लासिकल निशानी है। तो जिसकी वजह से उनके हिस्ट्री में ऐसा आ गया, भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसा ऐसा करे बोल के। अब ये यहूदियां पूरे कन्वर्ट हो जा रहे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बोले अरे तुम यहूदी है, तुमको मालूम हमारे दुश्मन कौन है? जिब्राइल। वही जिब्राइल कुरान लेके आए, देखे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपने को दुश्मनी। हाँ, क्योंकि तो फिर अपन जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए हुए किताब कैसा मानना? हाँ, तो मतलब कुरान में कुछ गड़बड़ है ना, कुरान हमारे लिए नेगेटिव है ना, हमारे लिए बुरी है ना, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए ना, इससे चलो अपन आज से कुरान को नहीं मानेंगे, आज से इस्लाम को अपन एक्सेप्ट नहीं करना। ये बहाना था उन लोगों का। ये है आयत, ये उनकी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मगर इसमें आदिल ये भी बोले ना अल्लाह ताला, अच्छा आगे की आयत में बोले, सॉरी और छोड़, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ इनको प्रॉब्लम था, और जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला अब उनको कैसा एड्रेस कर रहे हैं कि भाई नहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम तो अच्छे हैं, जिब्रील वो वैसे है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्या लेना देना, उनको किससे दुश्मनी, कई को है ना, उनको बीवी बच्चे है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं, उन्होंने तो फरिश्ते है, तुम कई को उनके पीछे पड़े हो। बल्कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं एड्रेस करे प्रॉब्लम। अल्लाह ताला कैसे एड्रेस करे मालूम? असल तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे को असल जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं, तुमको कुरान नहीं मानना है, इसके लिए तुम ये हौले कामा कर रहे हो, स्ट्रेटेजी कर रहे हो। और एक लाइन में अल्लाह ताला डिफेंड तुम और एक चीज, इनको मीकाइल बहुत पसंद, दूसरे फरिश्ते, तो बोले मीकाइल आते तो मान लेते, मगर मीकाइल अच्छा नहीं ये है। बोले वो लोग, अच्छा हाँ। तो जिब्राइल और मीकाइल एक चीज है, दोनों में फर्क क्या शुरू करे? एक अच्छा एक बुरा, एक क्या कॉन्सेप्ट शुरू करे। और यही कॉन्सेप्ट आजकल पूरे मेजर रिलीजियंस में घुस गया। क्रिश्चियनिटी के से पहले जितने भी रिलीजियंस है, पुराने ग्रीक रिलीजियन में, ज़ोरास्ट्रियन में, पारसियों में, कहीं भी फरिश्ते दुनिया चलाते। अल्लाह ताला उनके मेन खुदा तो सो गए, या अच्छे फरिश्ते रहते कहते, बुरे फरिश्ते रहते, बुरे फरिश्ते अच्छे फरिश्ते के साथ लड़ते रहते, तो अच्छे फरिश्ते के पास जाना कहते, उन्हें औलाद देते कहते। ऐसा करके नए नए कॉन्सेप्ट शुरू हो गए, जो एक्चुअली ओरिजिन है थियरी का, कि तुमको आज जो ये जो कॉन्सेप्ट आया दरगाह में जाना और अल्लाह के जो वली यहाँ हैं उनसे कामा करवाना, अपने प्रॉब्लम दूर करना, कि जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू यहाँ से हुआ कि अच्छे फरिश्ते हैं, बुरे फरिश्ते। अब बुरे फरिश्ते बुरा कर रहे तो कौन बचाना? अच्छे फरिश्ते बचाना। तो बचाना, उधर माथा टेकना, वो लोग अच्छे फरिश्ते हैं, नहीं तो बुरे फरिश्ते तुम्हारे को परेशान कर देते, तुमको प्रॉब्लम में डालते। ये मगर अल्लाह के पास क्यों नहीं जाना? नहीं, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करा? बुरा फरिश्ता। तो बुरा फरिश्ते को काउंटर करने के लिए कौन सा? ओके, सेम वही इस कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। ऐसा तो ऐसा करके जो है ये प्रॉब्लमों को सॉल्व कर। फिर वो मेन अल्लाह के पास क्यों नहीं चले जाएंगे? अरे अल्लाह के पास क्यों जाना? अल्लाह को छोटी चीजों को डिस्टर्ब कर। अल्लाह अजाब है, अर्थक्वेक, आप फैमाएंगे, बड़ी चीजें लेके आते, ये छोटी चीजें इनके है। इसके लिए जो है फरिश्तों के पास चले, यहाँ से एक फरिश्ते को दूसरे फरिश्ते से लड़ाना, फिर उससे बचने के लिए तीसरे फरिश्ते। ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में 10,000 साल चला। आज हम ये कॉन्सेप्ट सुन के हंसते, और आज हमारे नस्लों में भी ये नहीं है, ये सुने तो भी इतना अजीब दिखता। मगर ये आयत, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ ना, पूरे दुनिया, मेक्सिको से लेके साउथ अमेरिकन कल्चर में ले लो, ब्राजील के कल्चर को ले लो, अफ्रीका के आज भी जंगलों में ले लो, ये कॉन्सेप्ट चलता, बुरी आत्मा अच्छी आत्मा। मगर ये खुदा है, मेन खुदा कोई और है। बुरी आत्मा से बचना है, अच्छी आत्मा के पास जाना। जैसा बोलते बच्चा पैदा हुआ बहुत रो रहा, इसको बुरी आत्मा पकड़ी, क्या करना? फौरन अच्छी आत्मा कहाँ मिलती? दरगाह में मिलती, प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो बुरी आत्मा अच्छी आत्मा, बुरे फरिश्ते अच्छे फरिश्ते का कॉन्सेप्ट पैदा करे ना, यहाँ से इतना बड़ा शिर्क और गुमराही निकला। और गुमराही नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह को डिनाई नहीं कर रहे। अल्लाह इस टाइप के बुरी शय को पैदा करा, अच्छी शय को पैदा करा, बुरे शैतान को पैदा करा, अच्छे फरिश्तों को पैदा करा। तो अल्लाह ही है, तो एक्चुअली अल्लाह सबसे बड़े है, मगर ये भी दुनिया है, ये भी प्रॉब्लम है। वो बुरी शय है, अच्छी शय है, क्या करेंगे? ऐसा तो ऐसा धोखा देते कि अल्लाह को तो मान रहे, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं खाता, तो फिर आपका शिर्क तो सेफ है। अभी बाकी के छोटे मोटे क्या कर लेते तुम कर लो, कोई मसला नहीं, मगर इनके साथ उलझ के रहो, इन्हीं के बीच में रहो, इन्हीं के आगे पीछे रहो, और इनसे बुरों से परेशान रहो, और अच्छे के पास जाके माथा टेकते रहो। इसके लिए वो एक चक्रव्यूह में ऐसा फंस गए कि निकलते ही नहीं।
اس میں پھنسے ہوئے رہتے. یہ فساد جو نکلا نا, یہاں سے نکلا, جو یہودی آئیڈیالوجی نکالے میکائیل اچھے ہے جبرائیل خراب. اللہ تعالیٰ بولے جبرائیل میکائیل دو بھی اچھے ہیں, دو بھی میرے ہے, دو بھی ایک ہی ہے, دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرے کہ ایکچولی تم کو مسئلہ ان لوگوں سے نہیں ہے, اصل تمہارے دل میں کیا ہے, تم کو جو ہے ماننا ہی نہیں ہے. اس لیے آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ بولے جو بھی ان لوگوں کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں. تم بولتے نا جبرائیل علیہ السلام تو تم میرے ساتھ دشمنی رکھتے تم. اب پیغمبروں کو بھی ملا دیے, جو بھی اللہ کے دشمن ہیں اور اس کے پیغمبروں کے دشمن ہیں اور ان کے فرشتوں کے دشمن ہیں, اللہ ان سب کے فرشتوں کے دشمن ہے اور یہ پورے کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, خود کو بیچ میں لا کے جو ہے بول رہے کہ ان کی دشمنی میری دشمنی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود سے تو کچھ کرتے نہیں, یہ ایکچولی میرے امپلائیز ہے, میرے ڈپلومیٹ ہے جو میرے طرف سے جا رہے, ان کو مارنا مطلب میرے کو مارنا. فار ایگزامپل اگر آپ کے زمانے میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ڈپلومیٹ رہتے, آپ کا ایمبیسڈر رہتا, آپ انڈیا ہے, آپ جو ہے بنگلہ دیش کو اپنا ایمبیسڈر بھیجے کہ انہیں انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا, انڈیا کے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا, تو اس کی بے عزتی گورنمنٹ کی. تو بنگلہ دیش میں گیا اور انڈین ایمبیسڈر کو گورنمنٹ بنگلہ دیش والے مارے تو وار ڈکلیئر کر رہے تھے. تو ایمبیسڈر کو ماننا مطلب انہیں ایکچولی ڈپلومیٹ ہے اور انڈین گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا. اسی طریقے سے اگر تم اس کی بے عزتی کرے یا اس کی عزت کرے مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کی عزت کرے, اس کی بے عزتی کرے مطلب تم جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی بے عزتی کرے, وہ پاور کی بے عزتی کرے. تو اس لیے کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے پیغمبراں ہو یا فرشتے ہو, میں بھیجتا ہوں, میرے ڈپلومیٹ ہے, ان کو مارے, ان کو بے عزتی کرے, ان سے دشمنی کرے. وہ ایکچولی کیونکہ میرا کام کر رہے تھے اور میں بھیجا, میرے حکم سے گئے, تو ان کے خلاف دشمنی, ان کے نافرمانی کرنا مطلب میری نافرمانی کرنا. یہی آیت کو آپ دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کتنا غصہ آ رہا, تو ہم اگر ان کے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ کیسا آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کون ہے؟ محمد. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے مگر ان کی سنتے نہیں. ان کو مانتے, رسول اللہ بہت بڑے ہیں, رسول اللہ یہ ہے, مگر ان کے حکموں کو نہیں مانتے. رسول کو مانتے, رسول کی نہیں مانتے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے اندر. سمجھ رہے بات؟ رسول بڑے ہیں, وہ رسول کو مانتے, رسول کی نہیں مانتے. رسول کے حکم جو حدیثوں میں آئے, رسول کے حکم جو طریقے بتائے ہمارے کو, رسول جو ہمارے کو ہدایت دے کے گئے, وہ نہیں مانتے. تو رسول کو نہیں ماننے کے برابر ہے. رسول کو جھٹلانا بولتے کیا جھوٹے پیغمبر ہے بولنا نہیں. رسول کو جھٹلانا بولتے ان کے حکومات پہ نہیں چلنا, ان کے آرڈرز کو نہیں ماننا, ان کو ترسکار کرنا, ان کو ریجیکٹ کرنا. اور اگر اللہ تعالیٰ بولے جو میرے پیغمبر کو ریجیکٹ کرا میں اس کی بینڈ بجا. تو یہ جو ڈینجرس گیم کہ رسول کو مانتے, رسول کی نہیں مانتے, یہ خطرناک بیماری. اللہ تعالیٰ جو ہے اور ایمان گرا دیتے اور عذاب بھی دیتے. کیسا عذاب دیتے معلوم؟ ایمان سے خارج کر دیتے اور بددین بنا دیتے اور ایمان سے دور بناتے. اور قرآن تمہارے دل کے اندر ہی نہیں اترتی. کتنے بھی قرآن کے کلاسز سنو, اپنی من مرضی کرنا بولتے, میں نہیں سنتا کسی کی بات, دل میں نہیں اترتی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. اگر ہاتھ پیر بھی گرا دیے تو یہ عذاب اوکے ہے, مگر اگر ایمان ہی چھینچ لیے بچا کچھ اور ایمان سے دور کر دیے تو کتنا بڑا عذاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے فرشتے اور پیغمبروں کو جھٹلانا کا دشمنی میں بہت برا پکڑنے والا ہوں بول کے بول. تو یہ آیت نمبر چلیے قرآن میں دوسری جگہ کئی جگہ پہ آیا کسی بھی میسنجر کو کیونکہ وہ ایکچولی تم اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے, انہیں تو ڈپلومیٹ ہے. رسول تو ایک ایمبیسڈر ہے, ریپرزینٹنگ سمبڈی ایلس. رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکومات کو زمین پہ عمل کرنا. تو رسول کو جھٹلانا ایکچولی اللہ کو جھٹلانا ہے, اللہ کو ڈینائی کرنا. اور رسولوں کو جو قتل کرے, جیسے یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے, اللہ تعالیٰ بولے فوراً ختم کر دے تم, کیونکہ ان کو ختم کرنا اللہ وہ کے ایمبیسڈر ہے. تو اللہ کے خلاف جنگ کرنے کی برابری ہے. اس کے لیے کبھی بھی یاد رکھو, رسولوں کو اللہ تعالیٰ قتل ہونے نہیں دیتے, نبیوں کو قتل ہو سکتے, رسول نہیں قتل ہو سکتے. اس کے لیے علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانا, کیونکہ ایمبیسڈر کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر ایمبیسڈر ویک ہے مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنٹرول دنیا پہ نہیں. مگر اس کے لیے فرق ہے, نبی اور رسول میں فرق کیا؟ نبی وہ ہے جو اللہ کی حکومات پہ رہے اور اپنی قوم پہ بات چیت کرے, دین کی پیروی کرے, دین کو پھیلائے. مگر رسول جو ہے
रसूल को स्पेशल ऑर्डर मिलता कि जाओ इस कौम पे और मेरे तरफ से रिप्रेजेंट करो और मेरे एम्बेसडर बनो और मेरे हुक्म को चलाओ। तो जब अल्लाह ताला हुक्म दे के तुम्हारे को तो अल्लाह ताला सिक्योरिटी भी आपको देते। इसके लिए रसूल और स्पेशल पैगंबर और अंबिया नॉर्मल होते। एक 300 रसूल है और 1,24,000 नबियां हैं। हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी होता। तो नबियों में स्पेशल नबी को रसूल बोलते और रसूल के साथ अल्लाह की स्पेशल मदद। इसलिए कोई रसूल को कत्ल नहीं कर सकते, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल कर सका, ना ईसा अलैहि सलाम को कोई कत्ल कर सका, ना मूसा अलैहि सलाम को कोई कत्ल कर सकता। क्योंकि ये लोग जैसे मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला क्या बोले, जाओ तू पहाड़ तूर पे जाओ, फिरौन के जाओ। तो नबी बोले, मूसा अलैहि सलाम बोले मैं कैसे जाऊं, मेरी तो आवाज भी बराबर नहीं है और वो ने बहुत बड़ा गुंडा है, उसके पास मिलिट्री है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, मेरी मिलिट्री तुम्हारे साथ। तो मूसा अलैहि सलाम को कुछ कर सका फिरौन? नहीं कर सका। ईसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ताला भेजे, ईसा अलैहि सलाम को मार नहीं सके, अल्लाह ताला आसमान में उठा लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजे थे दुनिया की तरफ, उनको भी कुछ हाथ लगा सके नहीं लगा सके, मगर कई दूसरे नबियों को कत्ल करे, यहया अलैहि सलाम को कत्ल करे, जकरिया अलैहि सलाम को कत्ल करे, कई लोगों को कत्ल करे, वो हो सकता क्योंकि वो स्पेशल मिशन पे नहीं है, मगर स्पेशल एम्बेसडर। तो इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुटलाना और उनकी अहमियत को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो वो एक पॉइंट था। और एक इन लोगों की फिलॉसफी ये थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती से गलत आदमी को दे दिए। वो एक्चुअली हमारे यहूदियों के एक आदमी को देना था और उन्होंने सोए हुए थे, उनको एड्रेस नहीं मिला, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास जीपीएस नहीं था, उन्होंने गलती से जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खटका मार के दे दिया। ये भी एक फिलॉसफी। तुम हंस रहे, शिया लोगों में यही फिलॉसफी है। शिया में एक फिरका है सीरिया में के आसपास लेबनान के, जो समझते कि एक्चुअली जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देना। आज भी वो फिरका जिंदा है। नहीं तो उसमें मतलब एक्चुअली हंसने वाली बात नहीं है वो, उसमें भी अपन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि हम उधर पैदा नहीं हुए। तो फिर उसमें से निकलना अगर उधर पैदा होते तो इम्पॉसिबल था पलटना। अपने आप को, अरे आज छोटे से फिरके को नहीं छोड़ सकते, मतलब नॉर्मल वाला फिरका जो थोड़ा सा, तो क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट बचपन से उनके कहानियां वगैरह सुन के, मैं यहाँ पे एक मस्जिद में खुद पे चले गया था, देर से वही रहती बहादुर यार जंग के सामने। तो अब वो 2 बजे जरा लेट उठ गया तो वहीं में की चले आती, तो उन्होंने बोले कि ये नाम रिसाला कैसा पड़ा ये एरिया का, मतलब आपको जबरदस्त हिस्ट्री बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम रिसाले के बारे में। तो रिसाला कैसा बना इधर बोले तो एक नाम बोले, आप लोग शायद बेहतर जानते हो, वहाँ के इस्लाम फैला रहे थे इधर, मगर कपड़े पूरे फटे फुटे थे। तो एक आदमी, एक फिजिक्स केमिस्ट था, उसके पास एक खास पाउडर था, वो उन्हें इनकी गरीबी देखी है, पाउडर देके बोला ये पाउडर को लोहे में मिला दो, सुबह तक गोल्ड बन जाता और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ बोल के। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वो अल्लाह वली जो भी थे आप लोगों के जो, तो उन्होंने ले लिए। लेने के बाद में एक 8 दिन के बाद में फिर वो आदमी आया केमिस्ट ने बोला क्या अभी भी गरीब कपड़ों में है? तो बोले मेरे को तुम्हारी गोल्ड की जरूरत नहीं है, मगर मैं तुम्हारे को बताऊं मेरा पावर क्या है। ये लो मैं पान खाया, बोल के पान खा रहे थे, पान की शौकीन, पान जो है पहाड़ पूरा सोने का हो गया। तो बोले देखो सोना तो मेरे पास ऑलरेडी था, मैं तो दुनिया से मोहब्बत नहीं, मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ सोना कहाँ है रिसाले में, पहाड़ को मिला बताओ। तो ये कहते पहाड़ पूरा पत्थर का गोल्ड हो गया। ये थे अल्लाह वलियों की ताकत। अब ऐसे कहानियां सुनने के बाद में अपना फिरका कोई छोड़ेंगे? तो तुम्हारे पास है क्या? आपको मैं बोलूंगा नहीं भाई सलफिज्म करेक्ट है, देवबंदी करेक्ट है। देवबंदी में कोई एक ऐसा आदमी है जो खाली पान फूंक दिया पहाड़ पे और पहाड़ सोने का हुआ? नहीं है भाई, हमारे पास नहीं, हमारे पास है, हमारे फिरके के पास ऐसा आदमी है। मिलता ऐसा फिरका छोड़ना फिर नहीं, गोल्ड का पहाड़ नहीं छोड़ते भाई, तो ये फिरका नहीं छोड़ सकते। ऐसे कहानी सुन के फिरकों में इतने मुलविस रहते कि वो कहानियों को सच समझ के वो फिरके को स्पेशल समझ लेते, और स्पेशल फिरके में से कौन निकलना। तो रिसाले में रहने वाले आप लोगों को अगर वो पहाड़ मिला सोने का, तो मेरा एड्रेस तो माला में पहुंचा दीजिए आप लोग। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। गोल्ड का एक पत्थर भी मिल जाता तो और इससे भी फरिश्तों का ये जो कॉन्सेप्ट शुरू करे ना, इससे वसीले का भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट जो मुसलमानों में आया कि ठीक है भाई हम अल्लाह से मांगते हैं, हम इनके दरगाहों पे नहीं जाते, ठीक है, हम ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास नहीं जाते, मगर अल्लाह से मांगे जब जिब्राइल का नाम देते, अल्लाह जिब्राइल के खातिर हमारे को औलाद दे दे। अल्लाह तो जिब्राइल से मोहब्बत करता ना, तो जिब्राइल के सफ़े में, मीकाईल के सफ़े में तो हमारे काम करा दे।
तो अल्लाह ताला बोले कुछ भी नहीं, वो लोग खाली मेरे मैसेंजर्स है, वो खाली डिप्लोमेट्स है, उन लोगों का कुछ भी नहीं चलता ऑर्डर्स। अब देखो जो एम्बेसडर है, इंडिया का एम्बेसडर टू श्रीलंका या बांग्लादेश, उन्हें खुद से कुछ करता मन मर्जी मेरा दिल बोल रहा है नहीं, श्रीलंका नहीं, के पीएम, उन्हें हर चीज गुलाम है। किसका गुलाम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गुलाम। गवर्नमेंट ऑफ इसी इंडिया। तरीके पैगंबरों का खुद का कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म से। तो तुम उनको पकड़ के उनका नाम लेके उनका वसीला देके वो करके तुम जो गोल फिर के जो आते ना, और फिर बाद में जब काम हो जाता तो क्या बोलते हैं, ये फातिहा गौसे पाक का है, ये खाना गौसे पाक का है। और कुरान में एक आयत आती, अल्लाह ताला बोले शराब हराम है, सुअर हराम है, और अल्लाह ताला के अलावा कोई और जिस जानवर पे लेते तो भी वो जानवर तुम्हारे लिए हराम है। और वो खाना जिस पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम, गोश्त नहीं, खाना, चावल, बिरयानी, खीर, शक्कर या जो भी फातिहा को यूज करते, तो जो चीज पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेते, चाहे वो अल्लाह का वली रहो, अल्लाह का फरिश्ता रहो, अल्लाह का पैगंबर रहो, अब मोहम्मद के नाम का खाना नहीं खाते, गौसे पाक के नाम का खाना, जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम का खाना नहीं खाते। जैसे बोलते ना गौसे पाक का के नाम का फातिहा है, किसके नाम का फातिहा है, यानी तो ये वली का नाम का है, ये नियाज किसकी है, ये आजा गरीब नवाज के नियाज है, खत्म। तो फिर खाना तुम्हारे लिए हराम है। हाँ ठीक है, खाना वेस्ट नहीं हो रहा बल्कि बिस्मिल्लाह बोल के खा ले सकते हैं, मगर जो करे वाले को अल्लाह ताला जो है वो अजाब हराम खाने में उसको डाल दिया। तो उसी तरीके से चलो शायद नंबर 98 99 में उसके बाद एक बार 99 का ट्रांसलेशन दोबारा। और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी। यहाँ पे मैं दलील, रोशन दलील के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। आयातिम बय्यिनात, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात। बय्यिनात बोलते क्लियर, रोशन, अंधेरे में भी चमकने वाली बय्यिनात बोलते क्लियर, आयात बोलते निशानी। तो हमने तो अल्लाह बोलते हमने यकीनन हमने आपकी तरफ हमने इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए कुरान के जरिए रोशन दलीलें भेजी जिनका इनकार सिर्फ और सिर्फ फासिक ही कर सकता। उतने क्लियर मैंने आयात भेजी। तो इधर किसकी तरफ इशारा हो रहा? एक तो कुरान की आयतें बाय इटसेल्फ क्लियर है, काफिर भी लैंग्वेज में महारत रखता था उसको समझ में आते थे, मगर उनके साथ बेहतरीन दलाइल और क्लियरिटी आने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे पैगंबरों को चूज करा जिनका कैरेक्टर बेहतरीन है। और नबी सल्लल्लाहु की एक क्वालिटी और हर पैगंबर और रसूल की क्वालिटी कि कोई, अब समझो फॉर एग्जांपल कोई पैसा डुबाने वाला, चोरियां करने वाला, उन्हें अगर कुरान की तफसीर करा तो सेंस नहीं होता ना, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, भाई कुरान खुद पे तो अमल करो, तो तुम चोरी करना तो छोड़ो और हमारे को तुम कुरान क्या समझा रहे। तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या करते हैं, रसूलों का कैरेक्टर बेहतरीन रहता, बेहतरीन कैरेक्टर रहता, मैसेज एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है दावा में। दावा कर रहे आप, किसी को समझा रहे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रहे, उससे पहले आपकी इज्जत कुछ रहना सोसाइटी में। इज्जत बोले तो दौलत, प्रॉपर्टी, वो नहीं बोल रहा हूँ। आप एक अमीन, एक नेक आदमी समझना बहुत जरूरी है। वो जैसा दुनिया से दूर है, दुनिया से तर्क है, या दुनिया के लिए दीवानी मोहब्बत नहीं है, हराम हलाल खा जाने की मोहब्बत नहीं है, इंसाफ के लिए खड़े होने वाला है, ऐसा आदमी जब कुरान बोलेगा तो सामने वाला मुतासिब होगा। मतलब जनरली एक के लेवल पे बोलो, कई बार अपने हमदर्द कुरान सुनते, स्टडी करने की कोशिश करते, हेल्प लेते, मगर दावा का बेसिक रूल जो अल्लाह ताला हमेशा हर पैगंबरों के साथ करे कि वो बेहतरीन कैरेक्टर पे कहने के बाद में अल्लाह ताला उनको कुरान का काम दे रहे। तो दावा करने के लिए और दीन फैलाने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमको भी बेहतरीन कैरेक्टर अपने अंदर शो करना। और ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, रसूल अल्लाह को जब दीन के शुरू के मेहनत में कुरैश बहुत सताता था, खुसूसन अबू जहल, अबू लहब। एक बार गुलाम जो थे उनके छाती पे रेगिस्तान में लिटा के गरम गरम पत्थर रख के तड़पाया, और जब स्किन पूरा लाल लाल हो गया, खून हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उनको बोले, अम्मार को
जिनकी माँ और बाप सुरैया जो कि सबसे पहले शहीद हुए थे, उनको छुरा वो स्पीयर से भोग के मारा था अबू जहल। तो जब उनके ऊपर भी तकलीफ हुई, उनकी माँ का भी इंतकाल हुआ इस दीन के लिए, सिर्फ उनको इसलिए सताए जा रहे थे कि वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना चाहते हैं। और आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरी इजाजत है, मगर कोई बोलना नहीं चाह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। खैर, तो उनको तकलीफ हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, सबर। अल्लाह ताला के पास से हुक्म नहीं आया कि हम जंग करें या उनको काउंटर करें, सिर्फ सबर करो। दोनों सबर करें। और अम्मार बहुत बड़े सहाबी थे और हजरत अली के जंग में भी थे, और उनको जो कत्ल करे वो जहन्नुमी है बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत करे। और हजरत माविया और हजरत अली के बीच में जंग में वो हजरत अली के साथ थे और हजरत माविया की आर्मी उनको शहीद करी। उसके बाद में मुसलमानों को समझ में आया कि हजरत अली कैरेक्टर और हजरत माविया गलत थे। बहुत बड़े कैरेक्टर थे अम्मार, जो ये टाइम पे अपना स्किन का चर्बी पिघल रही थी, खामोश बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे दिन एक नॉन मुस्लिम कुरैशी आके बोला कि अबू जहल पैसे दिया था, उन्हें मेरे को पैसे वापस नहीं करा, दुबा दे रहा, कल देता हूँ, यहाँ काम हाथ जा रहे, बता रहा मेरे को, तुम चलो मेरे साथ। बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो, बोले इंसाफ का मामला है और मैं चलो, बोले जाके अबू जहल का गला पकड़े, दे नहीं देते तुम। अबू जहल ऐसा खौफ था कि उन्हें बोला नहीं, मैं बोलना नहीं आया कुछ भी, और ये अंदर गया, पैसे निकाला, दे दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते चले। तो इंसाफ का कैरेक्टर देखो, आप अपने लोगों पे हुआ सबर करा। इंसाफ का कैरेक्टर देखो कि दाई बनने से पहले आपको जो है वो कैरेक्टर वैसा आपका कंप्लीट रहना, इंसाफ के लिए खड़े रहना। वो आदमी लोग तो खैर बाहर वाले छोड़ो, अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने माँ के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने बहन के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये लोग बाहर वालों के सामने पहले बोल लेते, मगर अपने फैमिली के सामने नहीं बोल सकते। हक की बात नहीं बोल सकते, ऑफिस नहीं बोल सकते, दोस्तों में नहीं बोल सकते। कोई दोस्त दूसरे दोस्त पे धोखा कर रहा तो तीसरा दोस्त जो इस चीज को जानता है उन्हें खड़े रह के अपना नाम रखना ना, मैं कहीं को बोलूँ क्या मिला, मैं उन्हें मेरे से दुश्मनी पकड़ लेंगा, कल के दिन मेरे काम नहीं होंगे, मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, मेरा क्या जा रहा, उसकी मर्जी, मैं कहीं को बोलूँ, उसका अजाब उन्हें भुगतना, उन्हें गलत कराना तो अल्लाह ताला अजाब देता, अल्लाह ताला अजाब देने वाला, मैं कहीं को अल्लाह बनूं, कैसी उल्टी लॉजिक देखो। इंसाफ के लिए खड़े होना नहीं है। इसके लिए वो जो सूरह बकरा में अपन बंदर की स्टोरी बने थे ना, इंसानों को बंदर बनाए थे, देखो याद है? तो लोग सबा पकड़ रहे थे ना, तो उसमें 3 फिरके थे, 3 ग्रुप थे बनी इसराइल के। एक जो खतरनाक ग्रुप था, जो मछलियां पकड़ रहा था, 2 ग्रुप थे जो नहीं पकड़ रहे थे। एक ग्रुप क्या बोल रहा था कि इनको रोकेंगे और उनको रोकेंगे, अपना अपना काम अल्लाह का अजाब आता होला मरते, अपन कहीं को जाना। तो अल्लाह ताला क्या करे, वो सब वालों को भी बंदर बना दिए, और वो दूसरा ग्रुप जो नहीं जाना, जरूरत नहीं है बोला ना, उसको भी बंदर बना दिए, और वो पहला ग्रुप जो हक की बात करा उसको बचा। तो आज कौन करता, इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते। तो इंसाफ के लिए खड़े नहीं रहेंगे और आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ कि लोग आपके दरवाजे पे खटका मार के आना कि ये आदमी इंसाफ के लिए खड़े होने वाला है। आज हम लोग मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो खड़े हो जाते, मार्चा रैली निकालते, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ, बॉस्निया में ऐसा हुआ, मगर फिर अफ्रीकन कंट्रीज पे जुल्म हुआ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कुछ अमेरिका जुल्म कर रही, हम क्यों रैली नहीं निकालते? तो नॉन मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुसलमान मतलबी है, सिर्फ अपने मुसलमान के लिए खड़े होता है, क्या बात करेंगे, इसका दीन क्या सुनेंगे, इससे क्या कुरान सुनते, छोड़ो मुसलमानों को, एक लाइन में पहुंच के भेज देते अपने। हम इंसाफ, अगर तुम्हारे को जुल्म दिख रहा तो अपने मुसलमान भाई के साथ ही जुल्म है, दूसरे काफिर लोगों के साथ जुल्म हुआ तो जुल्म नहीं अच्छा हो जाता, हराम हलाल हो जाता है। तो हराम ही, तो वहां पे क्यों आवाज नहीं उठाए, अपने लोगों के लिए क्यों आवाज उठाए? ऐसा तो अल्लाह ताला भी क्या देखता, इस पे जुल्म डालो रे, क्योंकि मजलूम के लिए खड़ा नहीं हुआ। बहुत गलत बात, आज मजलूम के लिए मुसलमान खड़े नहीं होता, और फिर बोलता मैं समझाया और उन्हें नहीं सुन रहा, मैं उसको बोला नहीं सुन रहा, मैं उसकी दाढ़ी पकड़ा नहीं आ रहा नमाज को। एक बोलता तेरी वैल्यूज नहीं है सोसाइटी में, तुम खुद ईमान पे खड़े नहीं, तुम खुद गरीबों की मदद नहीं करे, तुम खुद मजलूमों के लिए खड़े नहीं हुए, उनके हक के लिए लड़े नहीं, जाके रैलियां नहीं निकाले, कोर्ट में नहीं गए, फिरे नहीं, इंसाफ नहीं दिलाए, तुम्हारी बात कौन सुनता? लाइट ले लेता, दिल बोला तो सुनता, दिल बोला तो नहीं सुनता। ये मुदस्सिर भाई थे, नबील भाई एक बार जिक्र करे थे कि हम लोग को खामोश नहीं बैठना चाहिए, दीन फैलाना चाहिए। तो एक महीना पहले की बात है, कॉल में बोले थे, है शायद नबील भाई कॉल,
तो कि मैं बोलना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए, हराम हलाल से करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, वो सब स्टेज 2 है। स्टेज 1 पता है क्या है? आपका कैरेक्टर क्या है? आप हक के लिए खड़े होते, आप इंसाफ के लिए खड़े होते, आप खुद एक एग्जाम्पल सेट करो, लोग तहज्जुब से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते और आपकी बात सुनने के लिए रेडी रहते, बस आप मुंह खोलना है। वो स्टेज 2 है, वो स्टेज 2 से पहले स्टेज 1 है। तो ये सबसे बड़ी निशानी जो अल्लाह ताला आयत नंबर 99 में बोल रहे हैं कि हमने जब बय्यिनात आयात भेजे, मेरी निशानियां भेजे, तो निशानियों में रसूल के साथ आने वाला मैसेज भी है और रसूल अल्लाह का कैरेक्टर भी है। तो ये मगर हमारे लिए हम जो दावा करना चाहते, हम एक वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बनाना चाहते, हैदराबाद की गंदगियां दूर करना चाहते, तो आपका कैरेक्टर क्या, आपका वो लेवल का कैरेक्टर है क्या? तो मिरेकल जो है इंसान के कैरेक्टर में भी होता। जो अल्लाह ताला बोले आयात है, मेरे आयात को क्यों नहीं समझते? आयात का मतलब यहाँ पे आयत नंबर 1 2 3 है, कुरान में जब आयात वर्ड है उसको बोलते निशानियां, उसको बोलते आयात। जो यहाँ पे अल्लाह ताला जो बोल रहे मेरे आयात मैंने भेजे थे, तो कुरान की आयत नहीं है, मेरे निशानियां। और सबसे बेहतरीन निशानी मिरेकल जो है इंसान की कैरेक्टर। तो अगर इंसाफ के लिए नहीं तो जो है फिर फायदा नहीं है, तो फिर मैसेज नहीं जाता, और मैसेज नहीं गया और नहीं सुना और तुम उसको बोल दिया फासिक है। क्योंकि आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला बोले जो मेरे आयत को ठुकराया, बय्यिनात साफ आयत, रोशन आयत को ठुकराया, तो मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, उन्हें फासिक है। तो तुम आयत को ले लेकर, तुम्हारा दावा बराबर नहीं है, तुम लेके जाकर उसको बोले और उन्हें सुना नहीं, उसको कुरान दिया, उन्हें कुरान फेंक दिया, तो इसको फासिक बोल के कैसे बोलते हैं? तो आयत को इस तरीके से क्या मिरेकल के 2 हिस्से होते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल कैरेक्टर के अलावा भी क्या थे? चीज आप बोलते थे, कहानियां पहले के जमाने के यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानियां जो किसी को नहीं मालूम थे, और यहूदियां जो गड़बड़ करे वो सब बताए, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां थे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कैरेक्टर एक निशानी भी था, ये भी एक निशानियां थे जो उनको ठुकरा दिए। अभी टाइम बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो गया, 12-10 हो रहे। तो इंशाल्लाह आयत नंबर 100 कल करेंगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का के टाइम पे जादू कैसा शुरू हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जादू से बहुत परेशान है इंसान, बहुत तकलीफों से गुजरता कि क्या अल्लाह की मसलियत क्यों आई थी, क्यों दुनिया में शुरू हुई, और सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या लिंक है, इंशाल्लाह हम लोग अगले आयत में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए मैं इंशाल्लाह रैप अप करता हूँ, और आप लोग को कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, और आज अगर क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं रहते हैं तो फिर क्लास रैप अप